Assalamu alaikum everyone. I am back again. I took a day off for once, but I'm not gonna stop posting. But I took a day off, just usual weekend stuff. Actually अभी बैठ के वही सोच रहा था. Obviously रात के 12 बज रहे हैं. कल back to work, and you realize कि भाई weekend गुजर जाते हो पता भी नहीं चलता. So I always spend like an hour or so every Sunday night वैसे ही बैठ के kind of planning my week. क्योंकि फिर ये होता है when you like go back into Monday back to work, you're going into it cold, and then you see like a swarm of emails कि ओ अच्छा like मेरी 50 emails है पहले मैं ये तो figure out करूँ करना क्या है. तो उससे बेहतर है मैं ज़रा बैठ के for a cup like an hour or so I just plan कि okay like priority list में क्या है, especially when there's multiple projects it just helps to screw your head on correctly. But yeah, overall weekend over, didn't do much actually. I didn't disclose this earlier. Obviously, पहले we used to live in the southwest of the UK. मेरा office अभी भी उधर ही है, near Bath and Bristol. But we used to live in this little town. Not a lot to do, and typical British town होता है. कुछ खास करने को नहीं होता, and it's just it's peaceful, it's quiet. But for people of our age group, not a lot. दूसरा ये ऑब्वियसली मसला होता था कि हलाल और इस तरह की चीज़ें पास नहीं होती थी. तो वीकेंड जब भी आता था वी वुड जस्ट गो टू बाथ और टू ब्रिस्टल जस्ट टू डू समथिंग लाइक इवन अगर शॉपिंग भी नहीं करनी कुछ भी नहीं करना लाइक एटलीस्ट आप ज़रा कुछ ज़रा लाइवली एरिया में जाते हो टू डू समथिंग एल्स. सो सिंस वी मूव टू लंडन अ कपल ऑफ months ago, obviously where we live in East London that is extremely lively, बड़ा busy area है और पास पास भी there's stuff to do. तो Saturday we went to Hackney just to explore a little bit कि अच्छा what's it all about. तो it was a cool little area, but अभी we haven't even like scratched the surface. अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमने करना क्या है exactly because there's so many options. मतलब हमने Greenwich देखा है which is this really nice place जहाँ से आपको पूरे लंदन की स्काईलाइन नज़र आती है. Obviously सेंट्रल लंदन का तवाफ़ आई थिंक काफ़ी साल पहले ही हो गया था. एवरी नाउ एंड देन आप करते रहते हैं, बट देयर इज़ सो मच टू डू. लाइक लंदन की बहुत सारी छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं where you can go and explore and see the city and try different things. So hopefully in the coming weekends we actually attempt to do that. But वही होता है एवरी वीकेंड सैटरडे को आप थोड़ा बहुत कुछ करते हो, संडे को घर के काम होते हैं, हफ्ते की प्लानिंग करना, ग्रोसरीज, खाने बनाना, सफाई ऑब्वियसली. तो वो एरेंड्स करते करते देन यू सिट एंड रियलाइज़ कि अच्छा चलो अब तो संडे भी ख़त्म हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं. तो but that's life, that's just how things roll. So अब I'm not shocked at it, but थोड़ा टाइम लगता है where I think आपको realization होती है कि you need to take out time for yourself as well every now and then. और ये चीज़ I think आप जब बाहर जाते हो तो you kind of it's much more pronounced. मैं अब जिस तरह जब मैं यूके आया था 2021 में, तब तो चलो आप यूनिवर्सिटी में हो, so you're doing your masters but you're surrounded by people of your age group and all of them are in a similar situation and you relate to them, और आप दोस्तियाँ करना इतना मुश्किल नहीं होता. बट मास्टर्स 1 साल का होता है, छोटा सा होता है, ख़त्म हुआ एंड देन एवरीबडी इज़ गॉन देयर सेपरेट वेज. मेरे अपने कोहोर्ट से majority of people have either gone back home or gone somewhere else in the UK, so it's very difficult to keep in touch and keep track of what everybody's doing and वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं. ज़रा आप kind of उस दलदल में होते हो कि अच्छा मतलब how do you make friends now. And obviously when you cross into your 30s फिर तो एक होता है कि अच्छा where do you make friends, how do you make friends. like minded होने चाहिए obviously, आप के kind of similarities होनी चाहिए. and अल्लाह का शुक्र है we have a few friends we've made and through my wife and like kind of our mutual friends here and there. but आपको ये feel बहुत होता है कि यार where do I go to make friends, and मतलब not just like anybody but fellow देसीज भी फ़र्क पड़ता है कि भाई आपके कोई मुसलमान या देसी दोस्त हों जिनसे आप बात कर सकें, रिलेट कर सकें. तो that is still a work in progress, but that's just life in a sense. But making friends abroad is still, I would say, if you don't do it तो आपको बहुत feel होता है. Like before I got married, when I was living alone, after my masters, obviously my masters in the Brighton में था, which is this wonderful city which is full of life and there's stuff to do. और कभी कोई concert हो रहा होता था या कभी football होता था. मेरे
डॉर्म के बिल्कुल पास ही एक्सक्यूज मी ब्राइटन एंड होव एल्बियन का प्रीमियर लीग स्टेडियम आता था, तो देयर वाज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन. लंदन वाज क्लोज बाय, लाइक आप बस लाइक इवन आई वुड रिमेंबर कभी कुछ कुछ दिन नहीं दिल जाता दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मैं खुद ही निकल जाता था इनटू द सिटी. आई वुड सिट एट द बीच, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, enjoy the fresh air. तो when I got my job, तो I had to move. छोटा सा टाउन था, इट्स कॉल्ड ट्रोब्रिज, साउथ वेस्ट में. और तब ऑब्वियसली आपको, आप एक अब्रॉड हो, यूर इन अ डिफरेंट कंट्री, आपको जॉब ऑफर आती है, यू टेक इट एंड यू डोंट पुट अ लॉट ऑफ कंडीशंस ऑन टॉप. चॉइस थी मेरे पास, आई कुड हैव स्टक विद लाइक अ रिमोट सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड सिचुएशन, बट मैंने कहा नहीं, आई थिंक आई शुड बी देयर, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन. In my circumstances, that was the right decision to make. But I made that decision, didn't think too much about it. I remember जब मैं ब्राइटन छोड़ के जा रहा था, I was like so sad to leave, क्योंकि I love that city. हम एक दफ़ा फिर से भी गए थे a couple of months back, and I remember it so vividly, and it's just such a nice place to live. It is expensive, I would say, like London type rent situation है, but it was such a nice place to live, और the community is super nice, बहुत ही inclusive और chill किस्म का शहर होता था. Not for everybody, obviously, it's not everybody's cup of tea, but it was a nice place. तो जब मैं जा रहा था, and I was kind of watching the sea go further and further away, and it was like my new city was now 4.5 hours away from Brighton. And when I arrived at where I would be living, I'm like, okay, I guess this is a new change, and I try to keep a positive attitude कि चलो it's life, ये चीज़ होती है. But a couple of months in, मैं बहुत like I was like very down and depressed कि where am I, what am I doing. I didn't have much to do. Like my weekends पे I would just walk all around town. मैं town से बाहर जाके किसी और town में walk कर लेता था. Like I was basically doing 10-12K steps just to kill time. And I didn't have a lot of hobbies. I had my PlayStation, and I remember like जब मैं apartment में नया move in किया था, तो I'm just reminiscing. This is just completely unstructured, I suppose. But जब मैं नया move किया था, all I had was an air mattress, a single air mattress जो camping में होते हैं, जिसको आप मोटर से फुलाते हो. And I had an air mattress. I had my PlayStation. I had a small computer monitor जो मैंने लिया था to connect with my laptop, and that's it. मतलब मैं, obviously I did not have the luxury of movers and all that. All that stuff is expensive. So a lot of stuff I sold or donated when I was leaving Brighton. सब कुछ आपने जब 3 बक्सों में ठोंसना होता है ना, आपने अपना सारा सामान डालना होता है, तो आप कहते हो अच्छा यार कैसे प्रायोरिटाइज करना है. तो आई बेसिकली वेंट देयर एम्प्टी हैंडेड. बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस अपार्टमेंट में थोड़ा सा फेसबुक मार्केट प्लेस से कोई फर्नीचर लिया. बहुत मेरा मजाक उड़ाया गया था उस चीज़ पे ये, लेकिन मैंने ना एक आर्म चेयर ली थी फेसबुक मार्केट प्लेस से, लाइक 10-12 पाउंड की. And I carried it all the way home, and that armchair, I was so comfortable. I loved that armchair, बहुत comfy और सुकून and all of that. और बाद में पता चला it was a maternity armchair, but either way it was very comfy, and I kept it for a long time. But तब कोई like बंदा अकेला रह रहा होता है, आई डोंट थिंक आपको कोई कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मुझे क्या फर्नीचर चाहिए, मैंने क्या करना है, मैंने क्या ख़रीदना है, डेकोरेट कैसे करना है, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. बस मैक्सिमम जो मैंने किया था वॉज अ फ्यू मंथ्स लेटर. पहले मेरे पास सिंगल एयर मैट्रेस होता था, फिर डबल एयर मैट्रेस आया, फिर उसके बाद मैंने फाइनली आई गॉट अ बेड. लाइक बहुत देर बाद आई गॉट अ प्रॉपर बेड विद अ मैट्रेस एंड एवरीथिंग. और उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता अपार्टमेंट में एक पॉइंट पे आके मैंने टीवी लिया. मैंने कहा अच्छा ओके, लाइक मैं इंसान हूँ, आई शुड वॉच टीवी, आई वांट टू वॉच मूवीज़, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ. तो फिर मैंने जाके टीवी लिया, कोई टेबल्स ली, और आहिस्ता कुछ थोड़ा बहुत बनाया. एंड बिफोर यू नोट, ऑब्वियसली आई गॉट मैरिड, वी मूव्ड टू अ बिग, स्लाइटली बिगर अपार्टमेंट. About 2 years after I moved at the older place. तो मैं वही सोचता था कि कुछ करने को ही नहीं होता था. लाइक बात चला जाता था, ब्रिस्टल कभी कभार गया. लाइक मैं भी सुस्त हो जाता हूँ इन मामलों में. आई थिंक इफ़ आई हैव जस्ट माई सेल्फ माई प्ले स्टेशन, सो आई जस्ट किल टाइम प्लेइंग फीफा, नॉट डू मच. बट आई थिंक मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं, लाइक वी शुड बी डूइंग मोर, लाइक कुछ एक्टिविटी करें, कुछ लोगों से मिलें, कुछ करें. तो शुक्र है, आई थिंक वी ब्रोकन दैट हैबिट अ लिटिल बिट.
थोड़ी बहुत हॉबीज़ भी पिकअप कर ली along the way. I was terrible with plants, but now I love like buying new plants and growing them. I'm trying to grow potatoes and I have like a bunch of पूरे घर में मैंने पौधे फैलाए हुए हैं हर किस्म के जिनको मैं like monitor करता रहता हूँ and you know I love kind of like gardening और इस तरह की चीज़ें. तो आप आहिस्ता आहिस्ता हैबिट्स पिक करते हो and you find ways to fill your time in a productive good way. um, but yeah, that's just part of life. So I think my time in Trowbridge was always very मतलब एक सेंस ऑफ डिनाइल में था until I realized कि अच्छा this is not healthy, like मैं कुछ कर ही नहीं रहा. कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी ढूंढनी है. बट याद आपको बहुत आता है और मुझे बहुत like I really miss my time in Brighton. It was a great time. I made some wonderful friends and I'm really sad कि all of them had to, obviously because of their lives and their careers, a lot of them had to move home. One of my closest friends was this guy from Syria, really smart guy, enormously talented. Now, mashallah, see he works in Syria and Turkey, UK भी आता जाता रहता है. बहुत senior position पे मेरे ही sector में, humanitarian sector में काम करता है. तो a lot of people just disperse. और ये if anybody is contemplating doing a masters, तो एक बहुत एक common experience होती है कि आप एक साल एक बहुत ही congested period के अंदर you get to know each other and you become great friends and आपकी सारी एक्टिविटीज़ इर्द गिर्द होती हैं. मेरा अपना कोहॉर्ट, मेरा जो बैच था मेरे प्रोग्राम को, बहुत छोटा था. वाज लाइक 30 people, so everybody knew everybody. So when you graduate, suddenly सारे गायब, everybody disperses. Obviously people have jobs and careers, but वो बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस होती है एट द टाइम. सो या लाइक मैं वही बैठ के सोच रहा था कि यू नो how I started and how I got here. But I think बहुत ज़रूरी है anybody who's considering coming abroad के find a hobby, find stuff to do, make friends, is like put yourself out there. हमने even like there was a point where हम तब Trowbridge में थे कि बहुत छोटी सी मुस्लिम कम्युनिटी थी इलाके की. obviously it was a very small town in a sense. तो बहुत छोटी सी मुस्लिम कम्युनिटी थी, एक छोटा सा मस्जिद था. तो हमने रमज़ान में कहा कि चलो वहाँ ना they're having an iftar, so let's go there and just meet people and have an iftar. And people were nice and stuff, but आपको पे realization होती है कि like you're the youngest people in the room in a sense, besides the kids, क्योंकि everybody there has like families and they have kids who are like teenagers और सब अपनी kind of like activities में मसरूफ़ होते हैं. तो you do feel a bit left out. आपको लगता है कि यार like मेरे age mates, मेरे people within my age group वो सारे कहाँ हैं. तो यहाँ शुक्र है आई थिंक लंदन आके even just being surrounded by people our age, it makes a big difference. And I think it kind of pushes us to realize कि देखो यार we're not like 45 yet, you know, we're still in our 30s, we should be like putting ourselves out there. तो आपको activities मिल जाती हैं to do and to try. There's loads of stuff to do. इवन अगर आपने वैसी वॉक करनी है, एक्सप्लोर करना है, अगर आपने किसी को मिलना है, यू कैन ऑलवेज लाइक गो टू द सिटी एंड जस्ट मीट इन द मिडल, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. आई एम लकी कि मेरे कुछ दोस्त भी, some old friends I've unearthed who actually live really near me. So वो भी काफ़ी एक एडवांटेज हो गया है. बट यू नो we're still trying and we're still hoping. बट इन मौक़ों में मुझे घर बहुत याद आता है बिकॉज obviously I have my old friends who I've known for like almost 2 decades now, mashallah. And हमने यूनिवर्सिटी साथ गुजारी, अच्छे बुरे वक्त साथ गुजारे. We've all seen ups and downs together and I'm very fortunate कि अभी भी like कल को I can just call my buddies and they'll pick up the phone और ऐसे रहेगा कि जैसे आप कल ही मिले हो. It's a very familiar feeling. It doesn't feel like there's a gap of thousands and thousands of miles between you. Like एक दोस्त यूएस में होता है, कुछ पाकिस्तान में होते हैं, कुछ दुबई वगैरह में होते हैं, मैं बरतानिया में होता हूँ. तो आपको वो उस तरह से अकेलापन महसूस नहीं होता, लेकिन आप बहुत याद करते हो like simpler times. And that's, I think that's the weird thing about nostalgia, कि आपको लगता है कि जो वो क्या कहते हैं ऑफिस में कोट, दी ऑफिस में कोट होता है जिसमें बंदा कहता है कि like how do you know that the good times have gone. Like शायद आप ही अभी जिन good times को आप बाद में जाके reminisce करेंगे, वही good times maybe you're already living through them. So it's a lesson to maybe take everything in its stead and really appreciate the today and the here and now. But nostalgia is a killer. मतलब आप फिर भी you reminisce.
एंड आई रिमेंबर लाइक हमने जब नया हमने जॉब स्टार्ट की थी ऑल ऑफ अस, सब तब भी लाइक आई स्टम्बल्ड इनटू सम लाइक रिसर्च जॉब, और टफ जॉब थी अच्छी खासी, लाइक 10, 12, 13 hours a day, एंड ऑफ आवर्स पे रात के 11 बजे तक काम करना, ये करना वो करना. आई वॉज लाइक बेसिकली रूटेड टू माई लैपटॉप. बट मुझे अभी भी याद है कि आप ऑफिस से निकलते थे रात शाम 5-6 बजे, यू वुड गो होम, घर हाजिरी डाली, अम्मी अबू से के साथ टाइम स्पेंड किया, खाना खाया, रात 9 बजे ऑन द डॉट यूर ऑफ. चाय पे हमारे लाहौर में क्या जगह होती थी, मंजी मंच होती थी और इस तरह की जगह, वहाँ पे चाय पे बैठ गए और बस फिर फॉर लाइक 2-3 hours एवरी डे आप बस लाइक रैंडम बकवास ही हम कर रहे होते थे. बट वो रैंडम बकवास करते हुए आपका वक्त गुजर जाता था. एंड इट फेल्ट सो लाइक इट वाज सच अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. इट वाज नॉर्मल टू द सेंस कि भी आपको आउट ऑफ ऑर्डिनरी लगता ही नहीं था until it stopped. एंड जब कोविड हिट, आई रिमेंबर कि कोविड में बहुत फील हुआ कि यार हैं हम लाइक हम मिले ही नहीं एक दूसरे से. you're stuck at home and you're trying to, obviously कोविड के अपने challenges थे. वो भी एक बड़ा अजीब टाइम था. मैं अभी बहुत लाइक आजकल मैं बहुत सोचता हूँ कि कोविड में लाइक वो 1.5 साल गुजरा कैसे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है स्पेसिफिकली हम करते क्या थे. लाइक वी वर ऑल होम, माई पेरेंट्स बोथ गॉट कोविड इन द मिडल. आई एम प्रीटी श्योर आई गॉट कोविड इन बिटवीन एज वेल. मैं यूके जाने की प्लानिंग कर रहा था, किसी से मुलाकात हो नहीं रही. एंड हम आई थिंक रात को ये किया करते थे कि रात को 9-10 बजे हर रात बिला नागा हम अमंग अस, जो उन दिनों बहुत पॉपुलर हुई थी, हम अमंग अस खेलते थे. एंड वी वुड बेसिकली सेट अप लाइक अ जूम कॉल ऑन वन साइड एंड अमंग अस ऑन आवर फोन, और हम बस अमंग अस में लगे रहते थे और घंटों तक खेलते रहते थे. और दुनिया जहान की लड़ाइयाँ, गालियाँ, फटे कि भाई किसने किसको क्या किया, लाइक आई थिंक सभी चीटिंग कर रहे होते थे. बट मज़ा आता था. बट वही बात है, इट वॉज सच अ वियर्ड टाइम बिकॉज देयर इज़ लाइक अ ग्लोबल पैंडेमिक गोइंग ऑन. लाइक it was a disaster for economies and jobs and people, like many people died, and you're kind of like आप एक ड्रीम स्टेट में होते हैं जिसमें you're at home all the time and you just have to find a way to get through to next day. बहुत दफ़ा तो I would even forget कि भाई ये वीकेंड है या वीकडे है, कौन सा दिन चल रहा है. आपको वो डिफ्रेंशिएशन ही होती थी ना. लाइक आप जब हर वक्त घर होते हो तो आप घर से काम भी कर रहे हो या आप घर पे रिलैक्स भी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ना ओवरलैप कर जाती थी. सो यू डिडंट रियली नो लाइक व्हाट you're doing, what you're supposed to be doing. प्रोफेशनल प्राइवेट बाउंड्रीज आपने किस तरह मेंटेन करनी है. इवन लाइक मैं वर्क आवर्स भी मेरे बहुत ही आपे से बाहर चले गए थे कि लाइक मैं पूरा दिन बस काम ही कर रहा होता था. आई वाज लाइक जगलिंग 3 जॉब्स एट द टाइम, लाइक 1 फुल टाइम एंड 2 पार्ट टाइम, और उनको बस मैं किसी तरह से चला रहा था. तो काफ़ी एक वेयर्डनेस सी होती थी. सड़कें खाली होती थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लाहौर खोलना शुरू किया तो हम घरों से निकले. बट बहुत अजीब टाइम्स, एंड आई लाइक आई वाज सो ओवरवेट. लाइक एवरी डे आई वाज जस्ट लाइक ईटिंग माई फीलिंग्स एंड माई एंगजाइटी. और मैं फुल मोटा, मैं यूके आया था. बट इट वाज अ स्ट्रेंज टाइम टू बी अलाइव. एंड जब मैं यूके भी आया था तभी कोविड थोड़ा बहुत चल रहा था, तो आई वी हैड टू गो इनटू लाइक अ मैंडेटरी होटल आइसोलेशन. तो 10 दिन आप एक होटल में बेसिकली अपनी आइसोलेशन पीरियड पूरी करते थे बिकॉज पाकिस्तान वाज ऑन द रेड लिस्ट. तो वो भी जब मैंने किया मुझे अजीब लग रहा. मैं कहा यार आई एम लाइक काइंड ऑफ हियर, आई एम इन द यूके, आई कैन सी माई होटल वाज लाइक राइट नेक्स्ट टू लंदन हीथ्रो. तो मुझे दूर से लंदन हीथ्रो नज़र आता था और मुझे बाहर थोड़ी बहुत एक्टिविटी नज़र आती थी. मैं बहुत ताज्जुब से देख रहा होता था कि बाहर क्या चल रहा है, लाइक व्हाट इज़ इट गोना बी लाइक. Even I think I was allowed 30 minutes of like a walking time every day. कोई आपको सिक्योरिटी वाला बंदा आपके कमरे से पिक करता था, फिर आप बाहर पार्किंग लॉट में 30 मिनट्स के लिए अपना मास्क लगा के वॉक करते थे. और वो फिर आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू द यूके बेसिकली फ्रॉम अ होटल रूम. सो या इट्स बिन अ डे ऑफ रेमिनिसिंग. लाइक ये टाइम आई थिंक रात का ऐसा ख़तरनाक टाइम होता है कि मैं बैठ के बस सोचता हूँ कि किया क्या और हो क्या रहा है, एंड हाउ आई गॉट हियर. But it's an interesting life to live though. I'm very fortunate कि I got to experience this. But मैं लोगों को हमेशा यही recommend करता हूँ कि यार like don't get the wrong ideas about coming to the UK or going anywhere abroad. Like just don't think कि it is an extremely glossy, glamorous way of living. Like बहुत there's a lot of grind, a lot of effort that's required. I don't think anybody who's managed to settle here
कैन से कि बड़ा आसान था, नहीं होता. इफ दे आर सेइंग दैट देन दे आर लाइंग टू यू. It's not easy. It's a lot of effort and you have to jump through so many hoops and आपको किसी ना किसी तरह से जॉब सिक्योर करनी होती है. then you have to hold it down to a point where आप कह सकते हो कि अच्छा यार अब मैं अपनी वीज़ा स्टेजेस पे आगे जा रहा हूँ. एंड देन इवेंचुअली यू सेटल इन. बट एक होप ही होता है ना, हम आखिरकार वी weren't born here, अब तो इमिग्रेंट्स ही हैं. तो आप जब इमिग्रेंट होते हो तो यू हैव टू, योर पाथवे इज़ ऑलवेज अ लिटिल बिट हार्डर एंड दैट्स फाइन. लाइक दैट्स एक मुल्क के लॉज होते हैं. सो इट्स ऑलवेज ट्रिकी टू immigrate to a new place and start from scratch basically. और मैं already I started from scratch, had to scrap the rest of my career and start from level 1 all over again. I think I made the right decision, thankfully. But I'm sure there were times and बाकियों को भी यही फील होता होगा when you have your moments of doubt. You're like यार did I make the right decision? मैं अपनी फैमिली से इतना दूर हूँ, अपने दोस्तों से इतना दूर हूँ. और ये आपको स्पेशली फील होता है ऑन बर्थडेज, ऑन ईद पे बहुत. आई थिंक मैं हमारे लिए, हमारी फैमिली में स्पेशली ईद यूज्ड टू बी लाइक मतलब प्रॉपर टाइम ऑफ टुगेदरनेस के भी. सारे हमारे रिश्तेदार पास पास ही रहते थे. कभी फलां के घर चले गए, फिर फलां के घर चले गए, कज़न्स इकट्ठे हो गए, अल्लाह गुल्ला गप्पें, ये सारी चीज़ें. और अब जब ईद होती है तो ऑब्वियसली लाइक वी आर हियर एंड आप you try to celebrate in any way you can, but it usually falls on a working day. So आप it's usually like a Wednesday or a Tuesday और आप बैठ के अपना working day गुजार रहे हैं and it's Eid. And you look across and like तस्वीरें आ रही होती हैं फैमिली की, ये सब इकट्ठे हैं और आपको याद तो आती है, इंसान ही है आप, को याद तो आएगा. बट इन मौक़ों पे बहुत मुझे घर याद आता है और आप सोचते हो कि यार लाइक इज़ इट वर्थ डूइंग दिस. खुदा ना खास्ता कोई फैमिली में फौतगी हो, कोई बेरीवमेंट हो, इस तरह की चीज़ हो, आप इतने दूर होते हो. गेटिंग बैक होम एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स उस दौरानी में आप इतने पैनिक्ड हो. लाइक ऑब्वियसली वी हैड दिस सिचुएशन एज वेल इन आवर पर्सनल लाइफ. लेकिन खुशी हो, गम हो, जो भी हो, आपको घर से दूरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है. बट दैट इज़ द प्राइस यू हैव टू पे. A relative of mine said this a couple of months ago and I totally agree कि if you want like the economic security and the stability and all these things that come with living abroad, then this is the price you have to pay to make sure कि आप उसको sustain कर रहे हो. ये sacrifice है ही है. And it just depends on people whether they are okay with it or not, but that is the sacrifice, that's part of it. But ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है. आपने वे अप करना होता है what you're comfortable doing and what you're not, but दिल आपका हमेशा घर में ही होता है. So मैं हमेशा जब भी मैं nostalgic होता हूँ when I look into the past and I think about the past, तो मुझे हमेशा लाहौर तो obviously top of my list, Brighton तो ज़रूर मुझे याद आता है, but always home. हमेशा पाकिस्तान, जो भी हालात हों, जो भी हो, आप जब भी घर वापस जाते हो आप इन्फ्लेशन देखते हो, हालात देखते हो, परेशानियाँ देखते हो. ऑफ कोर्स दैट इज़ आई एम नॉट इवन डिमिनिशिंग कि भाई अगले जो वहाँ रहते हैं उनके लिए कितना मुश्किल है. बट घर तो घर है आखिर. यू आर बॉर्न वेयर यू आर बॉर्न. आपकी एलिजेंस और आपका दिल हमेशा उधर ही होता है. बट या दैट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग थॉट. बट नो, आई थिंक दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. मैं वैसे ही सोच के, मेरी चाय ठंडी हो गई है, बट मैं वैसे ही सोच के रेमिनिस कर रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी लूप इन करूँ. But yeah, hopefully you guys have a good rest of your week. I have a pretty busy week ahead, but inshallah next week we have a bank holiday, so we're off to Scotland. We're going to Glasgow. हम अभी कुछ महीने पहले एडिनबरा गए थे, which we really loved. बहुत खूबसूरत शहर है. And I'll definitely share some pictures. But Glasgow I'm very excited about. Whoever I've asked to be what's the best place to go in Scotland, everybody says Glasgow. Apparently it's the friendliest place in Scotland. So let's see कैसा जाता है. But I think मैं काफ़ी आज ही wonder कर रहा था कि इतना मैं burnt out हूँ because of work. I think we all need a vacation. So I think I'm going to be very much looking forward to relaxing and chilling out and exploring and trying new foods and just getting a bit of a break. So yeah, hope you guys have a good rest of your week. Good luck with Monday. Hang in there. Monday blues आपको कस के लगती हैं, but just try to put one foot in front of the other and do the basics and you'll be fine. And yeah, I'll talk to you guys tomorrow. Take care. Bye bye.